کیا میرے معزز ویورز جانتے ہیں کہ برطانوی مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل برنارڈ منٹگمری نے ریٹائرمنٹ کے بعد برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کی اور ملاقات میں درخواست کی کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، ریٹائرمنٹ کے بعد سوائے پینشن کے کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، اس لیے گزارش ہے مجھے ایک مکان اور تھوڑی سی زرعی زمین الاٹ کر دیں تاکہ میں زندگی کے باقی ایام پرسکون طریقے سے گزار سکوں۔ وزیر اعظم نے بہت تحمل سے ساری بات سنی اور پھر جواب دیا، مسٹر منٹگمری، یقیناً آپ ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ عالمی جنگ میں آپ نے تاج برطانیہ کے لیے شاندار خدمات دی ہیں جس کی ساری قوم مترف ہے، تعریف کرتی ہے، لیکن جنرل صاحب آپ کو اس قومی خدمت پر ہر ماہ معقول معاوضہ دیا جاتا رہا ہے۔ اب آپ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور ریاست کے لیے کوئی خدمت سر انجام نہیں دے رہے، اس کے باوجود برطانوی حکومت آپ کو ہر ماہ معقول پینشن دے رہی ہے۔ مسٹر منٹگمری، بطور وزیر اعظم میں عوام کے حقوق کا محافظ ہوں اور ملکی آئین کے مطابق عوامی ٹیکسوں کے پیسے کو اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے خرچ کرنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ انکار سن کر فیلڈ مارشل برنارڈ منٹگمری نے غصہ نہیں کیا، بلکہ اس نے وزیر اعظم کو سیلوٹ کیا، شکریہ ادا کیا اور آفس سے چلے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 6 فروری 2026 ہے اور دن بڑا مبارک ہے، جمعے کا آپ لوگ ادا کر چکے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی دلی مرادیں پوری کرے۔ آپ نے جو عرضیاں ڈالی، جو درخواستیں ڈالی، ان پر جلد سے جلد سائن ہو جائیں، ان کی منظوری ہو جائے، اور اس کے علاوہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو خصوصی سلام، دل سے سلام۔ اللہ پاک ان کی ریاستیں اور محنتیں قبول کرے، اپنوں سے دوری قبول کرے اور خاص کر ان کی اولاد کو راہ راست پر رکھے۔ اس سے پہلے کہ تازہ ترین خبروں پہ آئیں، اپنے ویلاگ پہ آئیں، آپ سے وہی گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے 8 فروری کو احتجاج کرنا ہے، آپ لوگوں نے 8 فروری کو ہڑتال کرنی ہے، آپ نے 8 فروری کو دکان نہیں کھولنی، موٹر سائیکل کو سڑک پہ نہیں لانا، ٹرک کو سڑک پہ نہیں لانا، روڈوں پہ ہو کا عالم ہو، دکانیں بند ہو اور احتجاج میں شرکت کریں۔ دوسری گزارش اپنے لیے ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ سبسکرائبر نہیں ہیں، ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ انشاءاللہ ایک پیکج ہوگا آپ کے لیے، حال، مستقبل اور ماضی۔ اس کے علاوہ اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ کی ذمہ ہے کہ جتنے ویوز ہوں تو آدھے جو ہے وہ لائکس ہونے چاہیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور ویڈیو کو جتنے بھی لوگ ہیں وہ پورا واچ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ سب سے پہلے ایک انتہائی جو ہے وہ افسوسناک اور خطرناک خبر سے ہم جو ہے نا آغاز کریں گے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کا علاقہ ہے شہزاد ٹاؤن، میرا خیال ہے کوئی کہہ رہا ہے ترلائی، بہرحال علاقہ اسلام آباد کا بنتا ہے۔ وہاں پہ ایک امام بارگاہ میں جمعے کی نماز کے دوران شاہدین بتا رہے تھے کہ بڑا خوفناک دھماکہ ہوتا ہے اور ہر طرف قیامت برپا ہو جاتی ہے، زمین لرز جاتی ہے۔ جو میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو 20 افراد کے شہید ہونے کی اطلاع، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ بالکل ہی نہ ہو، یا اللہ کرے کہ تعداد اس سے بھی کم ہو، بالکل کم ہو، اور 80 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات تھی، لیکن شاہدین یہ بتا رہے تھے کہ دھماکہ جو ہے وہ بہت خوفناک تھا، وہ بہت خطرناک تھا۔
अब आप अंदाजा करें ये बंदा कहां से चला होगा। इस बंदे ने कहीं से बंदोबस्त, यानी ये भी बताया जा रहा है कि खुदकश जो है वो ये धमाका अभी तक वो बताया जा रहा है। ये कहां से चला होगा, कहां से इसने जैकेट पहनी होगी, कहां ये ठहरा होगा, और फिर उसने आज इतने ज्यादा घर उजाड़ दिए। इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह यह है कि अपना काम न करना। पूरे का पूरा जो सिस्टम है, पूरे का पूरा वो एक शख्स को गिराने पे लगा हुआ है। वो लगा हुआ है कि इमरान खान की मुलाकात ना हो, वो लगा हुआ है इमरान खान जेल से बाहर ना आए, वो लगा हुआ है इमरान खान की बहनों पर पानी फेंकना है, वो लगा हुआ है कि इमरान खान की बहनों को सपारा नहीं पड़ने देना, वो लगा हुआ है कि इमरान खान को किसी तरीके से मुशरिकीन मक्का की तरह पाकिस्तान से निकालना है, तो ताकि हम खुलकर खेलें और वो हमारी जान छोड़े। जितनी ज्यादा तवज्जो इमरान खान पे दी जा रही है, जितनी ज्यादा जो है वो रैकी इमरान की जा रही है, अगर इतनी रैकी दहशत गर्दों की जो है ना वो की जाए तो मामला जो है वो बेहतर हो सकता है। लेकिन अभी आपको बर्नार्ड मोंटगोमरी का सुनाया वाकया कि शुक्र है वो अल्लाह की फौज का फील्ड मार्शल नहीं था, वरना वो पूरे बरतानिया का मालिक होता। वो रिटायर होता तो किसी मुनाफा बख्श इदारे का सरबराह होता, उसकी हाउसिंग सोसाइटियां होती, उस पर यह बात भी होती कि उसने मास्टर टाइल वालों से तकरीबन 90 करोड़ जो है वो मांगा था। ये लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब पे भी सवाल हुआ था। बहरहाल वो काफिर था, काफिरों की फौज का सरबराह था और उसके कारनामे भी बहुत थे। फील्ड मार्शल रोमेल या रोमेल को अगर किसी ने रोका था तो वो जनरल मोंटगोमरी ने रोका था। जनरल मोंटगोमरी जंगे अजीम जो है ना वो अव्वल में, फर्स्ट में और सेकंड दोनों में उन्होंने बरतानिया का जबरदस्त दिफा किया और जबरदस्त खिदमत अंजाम दी, लेकिन उनको जमीन का टुकड़ा नहीं मिला। यहाँ पे उनको पूरा चूलिस्तान मिल जाता, 6 नहरें मिल जाती। बहरहाल वो फिर बरतानिया के फील्ड मार्शल थे। तो बात हम कर रहे थे अपने काम की कि जो है ना वो अगर अपना काम किया जाए, अपने काम पे तवज्जो दी जाए। अब जो है वो इमरजेंसी होगी। अब पता चला होगा कि दहशतगर्दी किसे कहते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में हुई है। केपीके में तो वो कहते हैं ये तो रोज का काम है। मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा कि इस्लामाबाद में धमाके हों या लाहौर में धमाके हों या फैसलाबाद में धमाके हों, ये नहीं कह रहा, लेकिन ये लिफ्ट नहीं कराते। बलोचिस्तान को या बलोचियों को ये इंसान नहीं समझते। रोजाना होता है वहां पे, रोजाना जनाजे उठते हैं। केपीके में रोजाना होता है। फैसले ये करते हैं, बदला वो केपीके से लेते हैं या बलोचिस्तान से लेते हैं। अब शायद इनको लापता अफराद के दर्द का भी पता चले। अब इनको दहशतगर्दी की हीट महसूस होगी कि बम धमाका किसे कहते हैं, दहशतगर्दी किसे कहते हैं। और ये लड़ रहे हैं, हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, हम कामयाब हो गए। अभी क्या कहेंगे कि जी हम कामयाब हो गए, 3-4 बंदों को पकड़ लेंगे पठानों को और कहेंगे कि हम कामयाब हो गए, कामयाबी से हमने वो कर दिया। यानी जंग के अलावा इतने बंदे रोजाना शहीद होना, कहीं पे मुझे आप दिखा दें दुनिया के किसी मुल्क में, अफ्रीकी मुल्क में भी दिखा दें कि जंग भी नहीं है और इतने बंदे जो है वो रोजाना शहीद होते हैं। इतने बंदे, वो एक उम्मे जमील, उसका पहला नतीजा आया कातला का। वो अब कातला भी है, पहले भी ये कातिल हैं मॉडल टाउन के, डी चौक के, मुरीद के ये पहले भी कातिल हैं। वो एक 25 साल का जवान वो गुड्डी जो है वो उतार रहा था, उसको करंट लगा, कल शाम की बात है, और वो जान बहक हो गया। अब वो कातला भी बन गई। एक और बंदे की जो है ना डोर फ्री गले पे, उसकी वीडियो सर्कुलेट कर रही है। 1 अरब रुपया अब तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 1 अरब रुपया लग चुका है, 1 अरब रुपया। और फिर ये कौन? तारिक मतीन ने रिपोर्ट किया है कि कराची से लाहौर का वन वे जो किराया चल रहा है जहाज का 80,000 चल रहा है, 80,000। और ये बसंत नहीं होती। मेरे व्यूअर ज्यादातर बुजुर्ग हैं, ज्यादातर उनको पता है असल गेम क्या होती है। असल गेम कुछ और होती है। तमाम होटल बुक हैं, किसी होटल में कमरा नहीं है, किसी भी होटल में।
अब तो 3 दिन है, इन 3 दिनों में लूत की कौम शर्माएगी, लूत की कौम, यकीन करें। आद और समूद शर्माएंगे और शायद गिला भी करें कि हम पे तो अजाब आया था, इन पे क्यों नहीं आता, इन पे भी अजाब आना चाहिए। लेकिन रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजाब और हमारे दरमियान रुकावटें, जैसे भी हों हम उनकी उम्मत हैं। इन 3 दिनों में क्या होगा, लाहौर में क्या कुछ होगा, वो आपको अच्छी तरह पता है। और अब इस्लामाबाद में क्या हुआ, लाहौर में क्या हो रहा है, यहां पिंडी की छतों पे क्या हो रहा है, वो आकर आप देख लें, अपनी आंखों से देख लें। ये तरजीहात हैं हुक्मरानों की। बहरहाल हम लवाहिकीन के साथ इजहार अफसोस करते हैं, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, हम शोहदा के लिए दुआ गो हैं, हम जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं, हम इन हुक्मरानों की बर्बादी के लिए जो है ना बद दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इनको बर्बाद करे, अल्लाह इनकी नस्लें बर्बाद करे, अल्लाह इनको ऐसी ऐसी बीमारियां लगाए जो अभी तक मार्केट में भी नहीं आई। मार्केट में भी 3.5 साल याद करें उस दरवेश के, उस मलंग के, कि दहशतगर्दी कहां पे पहुंच गई थी, ग्रोथ कहां पे पहुंच गई थी। लेकिन वो CIA का एजेंट, वो बाजवा जिसकी 2 मरले की तशरीफ थी, ये पता नहीं यार आर्मी चीफ कैसे बन जाते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई। कहते हैं बड़ा डिसिप्लिन इदारा है, बड़ा जो है ना मेरिट है, या चीफ बन जाता है, बाजवा चीफ बन जाता है, जनाब चीफ बन जाते हैं, समझ नहीं आती। बहरहाल जी, हमारी हमदर्दियां, हमारी दुआएं, हमारी मोहब्बतें उनके जो है वो साथ हैं। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये कि अमेरिका को बहुत ज्यादा रियायतें देने पर इंडिया में जो है वो कोहराम मचा हुआ है। राहुल गांधी ने तनकीद की है और किसानों ने कहा है कि मोदी ने हमें अमेरिका के सामने बेच दिया है। लेकिन इसके साथ दूसरी खबर सुने। दूसरी खबर ये कि जब डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा भौंक रहा था, जुगते मार रहा था इंडिया को, तो अजीत डोवल को भेजा मोदी ने वॉशिंगटन में। इसलिए नहीं भेजा कि जाकर बक्सा जो है वो दिखाए उसका मादनियात का, बल्कि इसलिए भेजा कि वो जाकर बताए कि हम दबाव में नहीं आएंगे, हम सही वक्त का इंतजार करेंगे। और फिर सही वक्त आ गया, 18% टैरिफ हो गया, हम पे 19% है। हमने वहां पे जाके किस्म ऐस आपने देखा। बहरहाल ये दूसरी खबर थी। तीसरी खबर यह है कि पाकिस्तान ने कहा कि वो इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा, तो श्रीलंका मैदान में आया है। श्रीलंका ने पाकिस्तानी हुकूमत को खत लिखा है कि आप पे जब भी मुश्किल वक्त आया तो हमने आपकी मदद की, लिहाजा आप मैच का बायकॉट न करें। हमारा जो टूरिज्म है जिससे हम सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं वो खतरे में पड़ जाएगा, आप मैच खेलें। अब लगता यह है कि शायद पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेले। उसके बाद दुबई में, यानी जहां धमाका हुआ है जो है ना वो इमाम बारगाह में, तो दुबई में बगैर ड्राइवर के टैक्सी सर्विस का आगाज हो गया है। और इसका आगाज किया है क्राउन प्रिंस ने, वली अहद ने। उन्होंने खुद बगैर ड्राइवर वाली टैक्सी में सफर किया और वो अवाम के लिए खोल दी गई। शुक्र है वहां पे जर्नैल नहीं है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में मिशाल यूसुफजई, 2% की औरत बकौल खलील रहमान कमर और आस्तीन का साम शेर अफजल मरवत ये मौजूद थे। तो वहां पे मोहम्मद मालिक ने दोनों की जो है वो नाली वाले पानी के साथ शेव की, ये कह के कि जी हमने PTI का बंदा बुलाना चाहा लेकिन कोई PTI का बंदा जो है वो आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था। ये PTI के वोटों से एक सेंटर बनी है, एक MNA बना है। मैं तो कहता हूं कि PTI का कोई भी बंदा किसी भी टॉक शो में न जाए, ताकि पहले भी इनको कोई नहीं देखता, फिर मजीद ये टके टोकरी हो जाए। ये पता नहीं क्यों टाई कोटें लगा के जो है वो वहां पे पहुंच जाते हैं। बहरहाल मोहम्मद मालिक ने उन गद्दारों की सही बेइज्जती की। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि सुहेल खान आफरीदी खिताब कर रहे थे कबायलियों से, तो स्टेज के करीब बंदे काफी सारे जमा हो गए, पुलिस उनको हटा रही थी। तो सुहेल खान आफरीदी ने पुलिस को डांटा
कि इनको जो है वो न हटाएं, करीब आने दें। तो वहां पे सिक्योरिटी की आवाजें आई कि सर सिक्योरिटी का मसला है। तो सुहेल आफरीदी ने कहा जिसने मुझे मारना है वो मार दे, अगर किसी कबायली ने मुझे मारना है तो बेशक मार दे, मैंने क्या किया है। बहरहाल उसके बाद जो है वो काफी नारे बुलंद हुए। ये होते हैं असल वोट, ये होते हैं असल मैंडेट, ये होता है अवाम का असल नुमाइंदा। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि महमूद खान अचकजई ने वो लोहार से मिलने से इनकार कर दिया है। आज मुलाकात थी तो महमूद अचकजई ने कहा कि जब भी हम किसी तहरीक का आगाज करते हैं तो ये हमें चक्कर में डालते हैं, शहबाज शरीफ से मिलने से इनकार किया। दूसरा उन्होंने कहा कि डी चौक में सरों के निशाने लेकर गोलियां मारी गई, लोगों को कत्ल किया गया। हम तो आपको अपनी पुलिस समझते हैं, हम तो आपको अपनी फौज समझते हैं, लेकिन आपने हमारे साथ ठीक नहीं किया। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि 5 फरवरी, कल 5 फरवरी था, कश्मीर डे था। ये हुक्मरानों को याद कराना था 5 फरवरी 2013 को क्या हुआ था, जरा ज़हन पे डालें। याद आया? नहीं आया होगा याद। एक तो कश्मीर डे था, 5 फरवरी 2000 जो है ना वो 13 को जनरल परवेज मुशर्रफ का इंतकाल हुआ था। याद है किसी को? कहां पे दफन है? कोई फातिहा पढ़ने गया, कोई कुरान खानी हुई? ये जो मैं आपको कहता हूं कि अपने मरहुमीन के लिए दुआ किया करें, पता ही नहीं है किसी को। किसी टीवी ने सुर्खी लगाई हो, किसी अखबार ने सुर्खी लगाई हो, ये सरकारी मुलाजिम, बस यही होता है, इसी तरह होता है। बहरहाल उसके बाद आगे चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़क मारी है कि जो है ना वो ईरानी वो महफूज मकामात पर जो है वो शिफ्ट हो जाएं, कि अमेरिका वो बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मैं कई दफा आपको कह चुका हूं कि ईरान ना वेनेजुएला है और ना सैयद अली खामेनेई वो मादोरो हैं। अमेरिका हमला करेगा, करे, उसका जवाब आएगा, लीथल जवाब आएगा। ईरान की ये जो आर्मी है इनकी सोच जरा सख्त गिर है, इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइलों को एडजस्ट कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कल हमला करना है तो आज कर दे, आज करना है तो अभी कर दे। वो वैसे भी करबलाई हैं, हम उनके साथ हैं, कोई उनका जितना भी मुखालिफ हो। मैंने पहले कहा कि ईरान प्रॉक्सीज की हेल्प करता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो शाम में कुछ ग्रुप्स हो, चाहे वो यमन में हूतीज हो, लेकिन हम ईरान के साथ हैं, हमारी हमदर्दियां ईरान के साथ हैं, हमारी दुआएं ईरान के साथ हैं कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, बल्कि ईरान रिटेलिएट करेगा और ईरान को रिटेलिएट करना चाहिए। 2018 में एक प्लम्बर है जेहलम का, बैठक में बैठता है, बैठक से बाहर नहीं निकलता। 2018 में बसंत जो है वो हराम थी कि जी ये हराम है, हिंदुओं को त्योहार है। लेकिन फिर आप जानते हैं कि जिसने खान को सताया उसने रिक्शा चलाया, इसने जेल से आने के बाद बकवास शुरू कर दिए खान पे। तो अब वो कहता है, हसन अयूब को, गंदे नाले को इंटरव्यू देता है और वो कहता है ये स्पोर्ट है, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ये स्पोर्ट है। अब 2026 में वो हलाल हो गई है। हारून रशीद साहब कहते हैं कि बंदा उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि वो एक्सपोज ना हो जाए, जब तक वो नंगा ना हो जाए, जब तक उसकी असलियत जाहिर ना हो जाए। बड़े लोगों को इसने बेवकूफ बनाया, बड़े इसने यजीदों को गालियां दी, बड़ा इसने बनु उमैया को गालियां दी, लेकिन जब जिंदा यजीद सामने आए तो जिंदा यजीदों की ऐसी तारीफ, ऐसी तौसीफ, आज उसने कातला उम्मे जमील की तारीफ की कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया है, बड़ा माल आएगा, बड़ा माल जाएगा, मखसूस बाजार भी लाहौर में है और फिर इनके मखसूस बाजार से बड़े पुराने तल्लुकात हैं, दुल्ला फुल्ला, दुल्ला गजरियाला, जाती उमरा, मखसूस बाजार, इनके बड़े जो है ना वहां पे तल्लुकात भी हैं, वहां पे आना जाना भी है। तो बहरहाल अब हलाल हो गई है, लेकिन आपने घबराना नहीं है कि जी हर तरफ पतंगे उड़ रही हैं और बड़ी रौनक शौनक है, आपने घबराना नहीं है कतई तौर पे। मेरा ख्याल है इस सिस्टम के पास 80 दिन रह गए हैं, 80 दिन। मैंने आपको बताया ये मेरी वीडियोस या ये मेरे क्लिप काट के रख लें,
आप मुझे मामूली बंदा समझते हैं ना, यानी कि जो है ना कोई, क्योंकि मेरे जो है ना वो मिलियंस में सब्सक्राइबर्स नहीं है, मेरे व्यूज नहीं है, आप ये क्लिप संभाल के रख लें और आप पे अमानत है कि आपने ये क्लिप जो है वो मुझे भेजना है, लेकिन इंतजार करना है तकरीबन 80 दिनों का। 80 दिनों में क्या होता है, यहां पे कौन सा बुलडोजर चलता है, वो आपके सामने आ जाएगा। फिर आप मुझे चाय पिलाएंगे। बहरहाल वो चाय से याद आया, हाजी असगर साहब हैं ऑस्ट्रेलिया में, एडिलेड में, उन्होंने आज चाय पिलाई है। मैं और मेरी पूरी फैमिली उनकी मशकूर है। उन्होंने जो है बहरहाल उन्होंने मुझे भाई करार दिया है, मैं तो सबका भाई हूं, तो उन्होंने खसूसी भाई करार दिया है, वो मेरे भाई हैं बिल्कुल। अब उम्र का नहीं पता बड़े हैं या छोटे हैं। बहरहाल हाजी असगर साहब, चाय पिलाने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान जो है वो वसी करे और अल्लाह पाक आपके बच्चों को सेहत सलामती और राह रास्त जो है ना वो अता करे। तो आपने मुझे चाय पिलानी है, 80 दिन इंतजार करें, फिर आप देखेंगे कि होता क्या है। ये बसंतों से ये खौफ है, ये बसंत नहीं है, ये खौफ है। वो खौफ को हवा में उड़ा रहे हैं। शायरान पे बहुत ज्यादा दबाव आया, कोई सोच भी नहीं सकता था कि शायरान के साथ ये होगा। आपको पता है पूरे इलाके में शायरान को अमेरिका का गवर्नर कहा जाता था, अमेरिका का गवर्नर, हालांकि खुद बादशाह था। आपको पता है कि जितने भी अमेरिकी ईरान में थे बहुत ज्यादा थे, तो उनको डिप्लोमेटिक जो है ना पासपोर्ट हासिल थे हजारों की तादाद में। और ये ईरान जो है ये दुनिया का तीसरा बड़ा चकला था, तीसरा बड़ा शायरान ने बना रखा था, तीसरा बड़ा चकला। कितनी याशी, वो बसान देख लें, 80,000 का टिकट, सबसे बड़ा चकला तेहरान ईरान। वो उसका मकसद था यूनिवर्सिटी में स्कर्ट जो है ना पहनने की पाबंदी लगा दी गई। ये खेल तमाशे, ये पुराना, ये कबल मसीह से ये तरीका है, खेल तमाशे, लवातत, फाशी, उरियानी, ये कबल मसीह से है। वो जो हसन बिन सबा था, उसने फाशा औरतों को जो है ना वो हूरे बना दिया था अपने हशशीन के लिए, अपने पैरोकारों के लिए। वो बद किरदार और खूबसूरत औरतें पकड़ता, लोगों को नशे पे लगाता और कहता ये हूरे हैं, इधर भी हूरें फिर रही हैं। और ये 2-3 दिन हूरों के दिन हैं लाहौर में स्पेशली। तो शाह ईरान के 2 जर्नैल थे, उन जर्नैलों के बेटे गे थे, वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे, जर्नैलों के बेटे। आपको पता है सरकारी शादी हुई उनकी महल में, आपको पता है शादी में शायरान ने शिरकत की, लड़कों की बात कर रहा हूं। आपको पता है कि सलामियां दी गई, आपको पता है दावतें की गई, आपको पता है कि गैर मुल्की सफीरों ने शिरकत की और बड़ी खुशी का इजहार किया कि बिल्कुल शायरान ठीक जा रहा है। फिर क्या हुआ, कोई मुल्क दफनाने के लिए तैयार नहीं था, दफनाने के लिए, जगह देने के लिए तैयार नहीं था। जब कैंसर हुआ, जब इनकलाब आया, इनका यही हाल होगा, यही हाल होगा इनका, याद रखें। फिर अनवर सादात ने एक पुराना वीरान मकान दिया, उस मकान में शाह ईरान को दफन किया गया और उस पे पैरा लगाया गया, पैरा, उस पे पैरा लगाया गया कि जी कोई निकाल न ले और निकाल के वो काम न करे जो इसके दौर में होता था, जो 2 जर्नैलों के बेटे करते थे, इसके साथ वो काम न करे। जब मेहराबाद एयरपोर्ट पे उतरे ना इमाम खुमैनी, तो इंसानों का समंदर था इस्तकबाल के लिए, इंसानों का समंदर। इसी तरह होता है और इसी तरह होगा, यकीन रखें, इसी तरह होगा, बेफिक्र रहें। मैं जो कह रहा हूं और मैंने आपको बताया है कि मैं बेबुनियाद बात नहीं कर रहा। मेरी बड़ी पहुंची हुई हस्तियों से मेरा कनेक्शन है, बड़ी पहुंची हुई हस्तियों से, बड़ी पहुंची हुई हस्तियों से कनेक्शन है। उन्होंने मुझे बताया है 100 दिन, अब उसमें से तकरीबन जब उन्होंने बताया है तो उसमें से 18-19 दिन गुजर गए हैं, 18-19 दिन, बकाया तकरीबन जो है ना वो 80-81 दिन रह गए हैं इस सारे सिस्टम को बुलडोज करने के लिए। तो उसने
जर्नैलों के 2 बेटों की शादी करा दी। बसंत से न घबराएं। 8 फरवरी को आपकी हड़ताल नाकाम होती है, ये कहते हैं, उससे भी ना घबराएं। अव्वल तो कोशिश करें, हम कोशिश ही कर सकते हैं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है कतई तौर पे। हसन निसार कहते हैं इमरान का दौर कैसा था, अब देग कैसे चखते हैं, देग थोड़ा सा वो सालन या चावल निकाल के। उसका डिप्टी स्पीकर उसका अमेरिका में उबर चलाता है। डिप्टी स्पीकर, यहां पे कोई एमपीए बन जाए, उसकी 7 नस्लें संवर जाती हैं, 7 नस्लें। वो इतने ठेके पकड़ता है, वो इतनी जमीनों पे कब्जा करता है, वो इतने भत्ते लेता है लोगों से, वो थानेदारों से इतनी मंथलियां लेता है, वो मर्जी के थानेदार लगवाता है। वो डिप्टी स्पीकर था बलोच सूरी, वो उबर चला रहा है। हसन निसार साहब ने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है। हसन निसार साहब जो है वो फरमाते हैं कि कासिम सूरी जैसे पाकिस्तानियों को अजायब घर में रखना चाहिए, अजायब घर में, कि ये भी पाकिस्तानी है। जो डिप्टी स्पीकर था आजकल टैक्सी चलाता है और खड़ा अपने जगह पे है। इसलिए तो बलोच पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। बलोच अपनी जगह पे खड़ा है। और हसन निसार जैसा बंदा कह रहा है कि हमें कासिम सूरियों की जरूरत है, हमें शहबाज शरीफों की जरूरत नहीं, हमें मुख्यमंत्रियों की जरूरत नहीं, हमें कासिम सूरियों की जरूरत है। इस कौम को ठीक करना है तो कासिम सूरियों की जरूरत है। इस कौम को ठीक करना है तो कासिम सूरियों के सरदार की जरूरत है, जो आधी बोतल पानी की उठा लेता था कि बाद में इस्तेमाल करूंगा। जो पेपर की दोनों साइडें, आजम खान कहते हैं कि पहला वजीर आजम जो पेपर की दोनों साइडें इस्तेमाल करता था, कि जाया नहीं, एक साइड इस्तेमाल कर ली फिर दूसरी साइड पे लिखना शुरू कर देता था। पर्सनल सेक्रेटरी थे आजम खान के पहला वजीर आजम जो पेपरों की दोनों साइड इस्तेमाल करता था, क्योंकि वो कासिम सूरियों का भी सरदार था। अभी आपने सुना ना कि वजीर आजम ने क्या कहा बर्नार्ड मोंटगोमरी को, कि मैं तो मुहाफिज हूं। और हमें क्या सबक मिला है कि आप लोग निगहबान हो, आपसे एक एक बंदे के बारे में पूछा जाएगा। ये तो हमें कहा गया। फुरात के किनारे कुत्ता भूख से या प्यास से मर गया तो खिताब का बेटा जवाबदेह होगा, ये तो हमें कहा गया था। बर्नार्ड मोंटगोमरी को वजीर आजम कह रहा है कि मैंने तो अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मैं आपको कैसे रकबे दे दूं? जब आप वर्दी में थे आपको तनख्वाह मिलती थी। यही हमारा रोल है कि आपको तनख्वाह मिलती है दिफा की। फिर इमाम बारगाह में धमाका क्यों हुआ, फिर 20 लोग शहीद क्यों हुए, फिर केपीके में हालात क्यों खराब हैं, बलूचिस्तान में क्यों हालात खराब हैं? आप तनख्वाह हलाल करें, आप अपना काम करें, आपका सियासत से क्या लेना देना। आप आए ना DGISPR और करें प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो 3 घंटे जो है ना वो सुहेल आफरीदी पे बोलते रहते हैं, PTI के जो है ना गुनाह गर्दा जो है ना वो गिनाते रहते हैं कि PTI के कितने गुनाह हैं। अब आए ना और बताएं किसकी जिम्मेदारी। मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे तनख्वाह मिलती है, इन्हीं को तनख्वाह मिलती है, और कोई थोड़ी तनख्वाह नहीं मिलती। इतनी तनख्वाह मिलती है कि इनकी थूक सूख जाए गिनते गिनते। ये मशीनों पे गिनते हैं। फ्री बिजली, फ्री गैस, फ्री ड्राइवर, फ्री घर, फ्री जो है ना फ्री गाड़ी। फिर खर्चा कौन सा है? फ्री टी पार्टियां, फ्री इशाइये, फ्री जोहराने, अपना जहाज, फ्री वाउचर। तो तनख्वाह किस बात की? हर चीज जो फ्री है, उसके बावजूद इतनी तनख्वाह की थू खत्म हो जाए। और जब कर्नल बने आप तो प्लॉट शुरू, प्लाटों पे प्लॉट, प्लाटों पे प्लॉट, बस कर्नल से ऊपर जाए प्लाटों पे प्लॉट, प्लाटों पे प्लॉट। 90 अरब की जमीन काबू की हुई है बाजवा ने अपने घर के सामने, रावलपिंडी कैंट की 90 अरब की काबू की हुई है। कब्जा है, उसका कब्जा ग्रुप है। ये मोंटगोमरी मिन्नतें कर रहा है वजीर आजम की, तो अपना काम करें।
अपना काम करेंगे तो बात जो है ना वो बनेगी। तो बकौल हसन निसार के उधर उम्मे जमील कातला को देखें। उम्मे जमील मैंने आपको बताया था कि जहन्नुम में औरतों की सरदार, और ये बीवी थी अबू लहब की, अबू लहब की। इसका अंजाम और अबू लहब का अंजाम क्या हुआ वो किसी दिन आपको बताऊंगा, खासकर अबू लहब का, उसका अंजाम क्या हुआ, हुक्मरानों को बताऊंगा। आपने नहीं सुना होगा कि अबू लहब का अंजाम क्या हुआ था और वो कैसे मरा था, या आपने कमेंट्स में बताना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मरा था। तो कासिम सूरी को सलाम है, सारे बलोचिस्तान को सलाम है, सारे बलोचियों को सलाम है, डॉक्टर महरंग बलोच को सलाम है, बलोची जुबान को सलाम है, उनके सफेद सूटों को सलाम है, उनकी लंबी चौड़ी शलवारों को मुझे बड़ी पसंद है, घेरेदार, उनको सलाम है। तो कासिम सूरी जैसे बंदे वो अजायब घरों में रखने के काबिल हैं। एक बार फिर दिली हमदर्दी, दिली अफसोस इमाम बारगाह वालों से, एक और एक बार फिर अपने भाई हाजी असगर एडिलेड, अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।